So, hi everybody, good evening. My name is Kanika Anna, and I have secured All India Rank 1 in this year's IHF Forest Services examination. And here I am today to share some insights regarding the mains examination, which is upcoming. I think we have less than 2 months to go now. It's from the 16th of November, right? So it's a 2 months time. So I would just like to share some of the insights that I had during the preparation during the last year at this time. So, okay. And I hope it's fine if I go in English. I'll try to mix some Hindi also, but I'm not keeping it completely in one language. I hope it's fine for everybody. Okay. Okay. And please don't try to. Am I not audible? Am I audible now? Yes, ma'am. You are completely audible. Okay. Okay. Cool. Okay. So I received a list of questions from Ved sir regarding the forms that you people had filled and all the queries that you had. So some of the queries I felt they were more towards they were broader queries, which were maybe addressed for preparation of prelims next year or overall preparation strategy, how to balance with a job and all of that. So I don't think we will have the time, and this is not the right time to be touching upon those topics. For this session, I would like to keep it confined to the Forest Services mains examination, because the exam is really close now. And I think we can confine the preparation to that right now. Okay. Apart from that, I think we have enough time before prelims and other stages. Okay. And one request, please avoid spamming the chat box, right? If you have genuine queries, we can have all the queries at the end. If you have whatever queries remain, so we'll have that at the end. Okay. So please don't unnecessarily don't have the text. And we'll whatever, if you have any queries in the course of whatever I speak, just note it down and we'll take questions at the end. Okay. Okay. So starting with the preparation. First thing, 2 months time is left. I think by now, anybody who is preparing, who is seeking to appear for the examination, would have started with the preparation. However, elementary level, I think most of you would have started with the preparation. But since the time is less, I am pretty sure all of you would be facing some sort of a doubt that if it is possible in such a less time or not. Because in civil services, you know, we are used to long timelines. And we are also used to some sort of perfection, I would say. कि इस तरीके से इतना देर पढ़ना चाहिए ऑप्शनल को, या इतने महीने तो देने ही पड़ेंगे ऑप्शनल को, वरना नहीं फिनिश हो पाएगा. So we have all of that, and all of that is absolutely right for civil services examination. That's a different exam. Here, most of the people who come, I think around 70 to 80% people who come here definitely take up at least one new optional in this period between the civil services mains and the forest mains. Okay. So please rest assured that it is doable even in this short period of time. Forestry is an optional that can be covered in a short period of time when covered in the right manner. And you do not have to delve too much into it, because nobody has the time to do that unless there are some people who are preparing exclusively for forestry, but that percentage is very less. Okay. So firstly, I think the first part is that, please don't have any sort of self-doubt that whether or not it can be done in such a short amount of time, and whether or not, how can you achieve perfection? How will I manage answer writing and this and that? We'll discuss all of this in the course of this. Okay. Also, I hope my pace is fine. I do tend to speak fast sometimes, so I hope whatever I'm speaking, you people are able to understand, right? Okay. 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 Thank you. Okay. So, okay, starting with the exam, I'm pretty sure you people must be aware. General knowledge, general English, general knowledge, 2 optionals, one of which is generally forestry. I think 90% people take up forestry. And the other optional
In a lot of cases, it is geology. And in a lot of cases, it could be agriculture, engineering, or any other science optional, right? I'm pretty sure you people know the distribution of marks and everything, 300 for English and GK, and 200 per paper of optional. So that makes it 400 per optional subject, okay? So it is automatically understood that optional becomes very important in the forest services examination. So here 800 marks out of the 1400 total is for optional, right? So the first focus has to go on the optional preparation. So I cannot help with the geology preparation because that was not my option. But I can help with forestry. And I also had started forestry last year after my civil services examination, mains exam got over. I took a week break and after that I had started. So now what basic strategy I pursued, I had also referred to past year topper videos. And I thought that one, I will be taking up a course. I had referred to Hornbill classes. I took their zoology online, I took their forestry online course, okay? And there was no, I did not take any study material or anything. I just took their videos course, okay? Apart from that, so I would watch the videos, and along with that, I opened Vidyanshu Shekhar Jha sir's forestry notes. They are very comprehensive. I'm pretty sure by now a lot of aspirants are already aware of his notes in forestry as well as agriculture engineering. They are very comprehensive. Maybe you might not be able to understand everything if you are reading only from his notes, okay? But once you have a basic idea, they are excellent for, revising or even adding on to it. So I did not make any notes myself. I did not have the time. Last year, time was very less. I think we had 40-45 days or something. उस बीच में दशहरा, दिवाली वो सब भी था, तो of course हर बार होता है. So some time goes in those things also. तो वो 40-45 days का टाइम था जिसमें एक नया ऑप्शनल करना था. I had to revise my other optional zoology and English और GK तो चलो कम टाइम ही. So of course अब notes बनाने खुद से बैठेंगे तो it will take a lot of time. ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं. पहले अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स भी थे, अभी भी हैं ऑफ कोर्स, बट आई थिंक विद्यांशु सर के नोट्स का एक प्लस पॉइंट है कि वो कलरफुल नोट्स हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए अपने नोट्स में और बहुत अलग तरह का कलर स्कीम्स यूज कर करके. तो फॉर स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स आई थिंक कोई भी इस तरह के नोट्स रहते हैं ना जो बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटेड हैं, डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बना हुआ है, तो वो मेमोरी थोड़ा सा इट हेल्प्स विद द मेमोरी, आपको याद इजीली होता है. तो मुझे वो नोट्स, इसलिए मैंने वो वाले नोट्स को प्रेफर किया था. उनके नोट्स में भी आई थिंक 80-90% जो कंटेंट है वो हॉर्नबिल वाले वीडियोस का ही है. उसके अलावा थोड़ा बहुत उन्होंने इधर उधर से लिया हो तो लिया हो, मे बी बुक्स से या कहीं से. तो मैंने सर के नोट्स को खोला और वीडियोस मैंने चला दिए थे हॉर्नबिल वाले. तो वो वहां पर सर जो भी बोल रहे हैं, जनरली एवरीथिंग वुड बी इन द नोट्स, बट कुछ अगर एक दो चीज ऊपर नीचे रह गई तो आई वुड ऐड दैट इन द नोट्स इटसेल्फ. कोई एक डायग्राम में भी सर ने एक्स्ट्रा बताया या मे बी एक क्लास का रेफरेंस है तो वो मैं नोट्स में ऐड करती. बहुत कम ही वैसे मुझे ऐड करने की जरूरत है. तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर फॉरेस्ट्री का बेसिक कोर प्रिपरेशन. तो ये फर्स्ट राउंड मैंने इसमें किया था. एंड फॉरेस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जिसमें आई थिंक इफ यू सिट फॉर 6 to 8 hours अ डे, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि 10 days से ज्यादा लगना चाहिए एक राउंड में सारे वीडियोस को कवर कर लेने. थोड़ा सा इट विल बी डिफिकल्ट इनिशियली, थोड़ा मे बी लगे कि नींद आ रही है या बोरिंग लग रहा है, बट देयर आर सम पार्ट्स व्हिच आर आल्सो इंटरेस्टिंग. एंड आप उसको बिंज वॉच करके एक स्ट्रेच में, मतलब बिंज करके एक स्ट्रेच में लाइक लेट्स से 8-10 दिन में अगर खत्म कर लेते हैं तो वो सही है. But if you think you can, balance your other optional also with this, तो maybe आप अपने timelines को उस हिसाब से adjust कर सकते हैं. मैं एक टाइम पर एक ही optional कर रही थी. I was only doing forestry, so I had given 10 days dedicatedly for forestry optional preparation. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट राउंड में ये किया था. सेकेंड राउंड में अगेन आई थिंक आई गेव 8 to 10 days फॉर फॉरेस्ट्री. तो इसमें मेरे जो नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए थे, मैंने बनाए नहीं थे, जो नोट्स ऑलरेडी सर के थे, आई रिवाइज देम अगेन. इसके बाद वीडियोस नहीं देखे थे. एक बार जो वीडियो देख लिया वो काम हो गया. उसके बाद जो सर के नोट्स थे उनको रिवाइज किया
और कुछ पार्ट्स थे सेक्शन ए के जहां पर मैंने थोड़ा बहुत मणिकंदन वाली बुक को रेफर किया था। आई थिंक वैसे सर ने भी अपने नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स डाले हैं उस बुक से, बट आई हैड रेफर टू सम वेरी सिलेक्टिव पार्ट्स, जैसे कि जो मुझे काफी रिपीटेटिव लगते थे, मैनग्रोव्स वाला पार्ट, कोल्ड डेजर्ट्स वाला पार्ट, बैम्बूज आर अ वेरी रिपीटेड थीम, फिर आपके जो सिल्वीकल्चर सिस्टम्स होते हैं। सो दीज पार्ट्स मुझे थोड़ा सा लगा था कि आई नीडेड मोर क्लैरिटी एंड थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड के लिए आई फेल्ट कि आई वांट टू हैव अ बुक वाला रीडिंग आल्सो, बट आई डोंट थिंक इट इज कंपल्सरी। आपके पास टाइम है, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, बट आई थिंक even if there are many people who have done वो videos या sir के notes से, and that is also sufficient. So आप first time पर ही please मणिकंदन को लेकर मत बैठ जाइएगा along with this, because तब तो बहुत खिंच जाएगा आपका preparation. So if you're struggling somewhere, if you feel that आपको थोड़ी सी और clarity की जरूरत है, then maybe pick it up in the second round if you have the time. Okay, but I think one source maybe videos से, या अगर आप videos नहीं भी करना चाहें तो वो sir के notes से आप कर सकते हैं, अच्छे से कवर हो जाए। एक और सोर्स है जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रेफर किया था जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ और मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, NPTEL जो आई थिंक उसके यूट्यूब चैनल है उसका, उस पर अंकुर अवधिया सर हैं, उनके फॉरेस्ट्री के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इट डज नॉट कवर द एंटायर सिलेबस, बट कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस ऑफ द सिलेबस पर वो अच्छे से फोकस कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। So you can go through those videos, you know, initially to sort of set the mood for forestry if you have not started yet. तो आपको you know समझना है कि सब्जेक्ट का फ्लेवर है क्या एक्चुअली, what does the subject want to talk about, then maybe you can just you know browse through the videos, and बाद में भी आपको अगर लग रहा है कि कहीं पर कुछ डाउट है, अटक रही हूँ, तो maybe you can have a look. I have personally not referred to this. The sir's name is Ankur Avadhia. ये NPTEL का जो YouTube चैनल है उस पर अवेलेबल है। मैं बाद में वेद सर के साथ आई विल शेयर द प्लेलिस्ट आल्सो, ही कैन सेंड इट टू यू। और जो नोट्स है वो दैट इज विद्यांशु शेखर झा, ही वाज रैंक 5 इन लास्ट ईयर्स फॉरेस्ट्री एग्जाम। सो ये मेरा बेसिक स्ट्रेटजी था फॉर द प्रिपरेशन, एंड ऐसा कुछ मैंने यूनिट वाइज कुछ ऐसे अलग यू नो जैसे हम लोग में भी अपने सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल के लिए करते हैं कि यूनिट वाइज हम लोग भी ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, वी ट्राई टू डू समथिंग स्पेशल। इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने एक बार वीडियोस चलाए, सर के नोट्स उठाए एंड बस फिनिश कर दिया था, तो ऐसा कुछ स्पेशल वैसा नहीं। अगर अच्छा फिर एक क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग का क्या करना है, तो ये फॉरेस्ट्री का आप एक बात समझिए कि दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों को जीएस के केसेस में प्रैक्टिस करना होता है कि आपको एक क्वेश्चन आया है जिसमें आप जो आपने शायद पहले नहीं देखा है, एंड वो क्वेश्चन को आप अपने नोट्स के हिसाब से, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में हिसाब से, आपने जो भी पढ़ा उसको आप कैसे यू नो सॉर्ट ऑफ उसको एडजस्ट करके कैसे लिखते हैं, कैसे उस क्वेश्चन के डिमांड को मीट करते हैं, कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जनरेट करते हैं। That is what is needed for GS and also for the GK paper in the forestry. ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको बातें बनाने की जरूरत है नहीं। बातें बनाने पे इनफैक्ट नंबर कटेंगे ही, ऐसा लगेगा कि यू नो बीटिंग अराउंड द बुश हो रहा है। जो साइंस सब्जेक्ट्स के जो स्पेशली चेकर्स होते हैं, दे लाइक इट व्हेन स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट एज सून एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। तो यहाँ पर आपका फोकस rather than a lot of answer writing should be on multiple revisions and you know getting the basics right. यहाँ पर क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा कि इतने सारे जो साइंटिफिक नेम्स हैं, आपके इतनी सारी ट्री के स्पीसीज हैं, सबका अपना यू नो साइंटिफिक नेम्स हैं, 36 कुछ स्पीसीज हैं आपके पास, उसके पार्ट भी थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। उस पर वो सारे नाम वगैरह पे कमांड होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा किसका एग्जाम्पल है, कौन सा शीट लवर है, कौन सा सनलाइट लवर है, कौन से में कपाइसिंग हो सकती है, कौन से में पोलार्डिंग हो सकती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि यू नो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि मेंशन 5 स्पीसीज जो कि विच आर गुड कपाइसर्स। तो वहां पर दे डोंट वांट यू टू बीट अराउंड द बुश कि पहले आप लिख रहे हैं कि यू नो ऐसे ऐसे होता है, यू ट्राइंग टू जनरेट पॉइंट्स। मे बी वन इंट्रोडक्शन, 1 लाइन की कपाइसिंग क्या होता है, 1 लाइन और 2 लाइन्स, एंड जस्ट कम डायरेक्टली टू द 5 स्पीसीज, write their scientific names, write their common names. Maybe if you have the time, I think you'll have the time. We generally
8 मार्कर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मे बी अ स्मॉल डायग्राम ऑफ कोपाइसिंग, वो एक छोटा सा डायग्राम जो रहता है बस, नथिंग, इवन इफ इट इज टेकिंग 1 पेज ओनली, 1.5 पेज ही लग रहा है तो भी, बट क्योंकि यहाँ पर देयर इज वेरी लिटिल यू कैन ऐड इन सच क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस में लिखता भी है जनरली कि मेंशन द स्पीसीज, तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बट द मेन स्ट्रगल दैट यू विल फेस इज टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। Another important thing in forestry optional is diagrams. आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत मतलब इलस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है, बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको बहुत डायग्राम्स की जरूरत होती है. To almost I think every question you would need a diagram, especially in the section A of both the papers, right? तो आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप चाहें तो एक 4-5 पेजेस यू कैन प्रिपेयर सॉर्ट ऑफ क्विक रिविजन नोट्स फॉर योरसेल्फ, जिसमें आपका सारे टॉपिक वाइज बस डायग्राम्स हैं. तो एक जगह पर आपके पास कंसोलिडेटेड हो जाएगा फॉर रिविजन, एंड वो आप एग्जाम के दिन वो बीच का ब्रेक वाला टाइम होता है, या मे बी अर्ली मॉर्निंग, एक रात पहले, उस टाइम पर आप रेफर कर सकते हैं. मैंने ये काम किया था, तो अपने नोट्स तो नहीं बनाए थे मैंने, बट कुछ जो बहुत वोलेटाइल चीजें होती हैं, जैसे कि एक तो ये डायग्राम्स हो गए, तो वो बार बार देखते रहने से याद रहता है. दूसरा, जो स्पीसीज के कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के स्पीसीज के नाम, वही जब मैंने बताया कि कोपाइसिंग में किसका नाम रखना चाहिए, पोलार्डिंग में किसका नाम, तो वो मैंने थोड़ा बस उतना नाम वाम नोट करके, आई थिंक इट वाज अ 4-5 पेजर, ऐसा कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि ये बस लास्ट में पलटने के लिए. So this is the other area of focus in forestry option. तो अगर आप अपना ये दो पार्ट्स को अच्छे से strengthen कर पा रहे हैं, if you're good with the scientific names and everything, if you're good with the diagrams, यहाँ पर अच्छा एक चीज और है कि डायग्राम्स ऐसा भी नहीं कि आप सिंपल हड़बड़ी में बना दिया, जैसे हम लोग जीएस में बना देते नॉर्मल पेन वेन से ही. हड़बड़ी हो, लास्ट में पेपर खत्म नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बट शुरू में कोशिश करिएगा कि वो ब्राउन पेन, ग्रीन पेन से ट्री बना रहे हैं, उसको कलर अगर पॉसिबल है तो हल्का सा आप वो पेंसिल कलर से कलर कर सकते हैं. अगर लेट्स से आपने ब्लैक से बनाया है, यू कैन कलर दैट ब्राउन पार्ट एंड ग्रीन पार्ट, ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पर क्या है कि द डिमांड ऑफ द एग्जाम इज कि आप थोड़ा सा ज्यादा इलस्ट्रेशन पे आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालें. So it is encouraged if you do that, and people every year do this in the exam. There will always be some people who will be able to execute the color diagrams in the actual paper. So that will bring a natural disadvantage point to people who are not able to do it, right? क्योंकि कुछ एक एक्स्ट्रा है दूसरों के पेपर. So try your best. मैंने कोशिश की थी, I think जितने क्वेश्चंस में कुछ सारे 15-20 मार्कर्स में जहां पर भी स्कोप था वहां पर मैंने किया था ये कलर पेन्स वाला. 8 मार्कर्स जो हैं वहां पर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, बट आई थिंक लास्ट के क्वेश्चंस में आई कुड नॉट कंप्लीटली डू इट. तो जस्ट ट्राई कि आप जिस भी एक्सटेंट तक कर सकते हैं. दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच इज अप्रिशिएटेड इन द पेपर. ओके, इट माइट सीम वेरी कॉस्मेटिक एंड थोड़ा सुपरफिशियल, बट everybody is doing it, at least the toppers are doing it, so you would want to do it. तो यहाँ पर आपका पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपके डायग्राम्स आपने सिक्योर कर लिया, आपने रिविजन कर लिया अच्छे से, और आपको वो जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, स्पीसीज के नाम जो हैं, या फिर आपका वो जो सिल्विकल्चर ऑफ ट्रीज है उसमें आपको डिटेल्स चाहिए होते हैं, फिनोलॉजी वगैरह के डिटेल्स चाहिए होते हैं. वो सारी चीजों को जब आप स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप answers, if you want you can also simultaneously write 1 or 2 answers, but the thing is that in technical subjects ना, जब आपको पता ही नहीं है तो what will you write, फिर वो बात बनाने से it doesn't make sense. तो हाँ, अगर आपने let's say एक यूनिट का अच्छे से रिविजन कर लिया, then you can maybe write 4-5 previous year questions or something, ठीक है. बट ऐसे बिना पढ़े या ऊपर से पढ़ लिया है वैसे लिख रहे हैं तो उससे उतना फायदा नहीं होता. मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा डेली आंसर राइटिंग नहीं किया था, बट आई हैड रिटन 3 टेस्ट्स. आई हैड रिटन मे बी 3.5. एक टेस्ट तो लास्ट में मुझे लिखने का मन ही नहीं किया, सो आई डिड नॉट राइट, बट आई हैड रिटन 3 टेस्ट पूरा. एंड उसमें मुझे बस ये मेरा पर्पस ये था लिखने का कि जो भी एक तो
आप पढ़ के लिखते हैं तो रिविजन हो जाता है, एंड वो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि 3 घंटे वाले टाइम में मैं कलर डायग्राम्स कैसे बना पा रही हूँ, कितना लिख पा रही हूँ, किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ अपने आंसर्स का। ये मेरा मेन फोकस था, ठीक है। तो आपके पास इनफैक्ट इस बार टाइम है। आई थिंक यू कैन राइट एटलीस्ट 2 टेस्ट, मे बी 1 पर पेपर। इतना आप कोशिश आप डेफिनेटली एम कर सकते हैं, बट बाद में ना जब प्रेपरेशन अच्छे से हो जाए, जब रिविजन हो जाए, देन यू कैन डेफिनेटली एम टू डू इट। And one thing I missed was the previous year questions. They are very important. काफी चीजें आपको समझ में आती हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब न्यू सब्जेक्ट था एंड टेक्निकल सब्जेक्ट था, तो मुझे शुरू में यही समझ में नहीं आता था कि ये मतलब मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया है, बट व्हाट शुड द क्वेश्चन बी जिसमें मैं ये आंसर लिखूंगी। सो मुझे वो चीज में थोड़ा सा स्ट्रगल था इनिशियली। सो व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जब मेथड्स ऑफ रीजनरेशन लिख रहे हैं तो वो सीड वाला, या फिर आपका रूट सकर जनरेशन, जो भी 3-4 मेथड्स हैं, वो सब चीजें आप लिख रहे हैं, डाइंग बैक इन शोरिया रोबस्टा। हाँ, अनदर थिंग इज दैट आपको रिपीटेड थीम्स, जो फेवरेट थीम्स है एग्जामिनर के, ये आपको पता चल रहे हैं। जैसे आई थिंक 4-5 पेपर्स में मैंने देखा था डाइंग बैक इन शोरिया रोबस्टा इज अ वेरी रिपीटेड थीम। इसके अलावा आपके कुछ स्पीसीज आप देखेंगे, ऐसे तो हमारे पास 36-37 स्पीसीज की लिस्ट है, बट उतना एक तो याद रखना संभव नहीं होता है, एंड इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो आप ऑफकोर्स सबके साइंटिफिक नेम्स और कॉमन नेम्स याद रखिए, बट व्हेन इट कम्स टू रिमेम्बरिंग द डिटेल्स, ये आपको विद्यांशु सर के नोट्स में भी मिलेगा कि उन्होंने ना क्लब कर दिया है जो कुछ ट्रीज हैं जिनके सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर टेम्परेचर, सिमिलर रेनफॉल में ग्रो करते हैं, सिमिलर फिनोलॉजी फॉलो करते हैं, तो उसको क्लब करके एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ याद रख सकते हैं। और थोड़ा बहुत बॉल पार्क फिगर अगर आप इफ यू आर एबल टू हिट, देन इट्स फाइन। Nobody expects you to remember utna exact data. Nobody can remember utna exact data for so many species, right? But to make your job even simpler, you will, when you go through the previous year questions, you will see कि कुछ tree species हैं जो कि बिल्कुल favorite है examiners के लिए. Tectona grandis, Shorea robusta, Santalum, bamboo is very commonly asked. Mangroves, so it's a different unit altogether. So वो तो very important, ठीक है? इसके बाद आपके जो जिम्नोस्पर्म से पाइनस वगैरह, उस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। सो आप यू गो थ्रू द ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस लाइक 8 to 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड यू विल सी कि अच्छा, कुछ ट्रीज हैं जो ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर्स के, तो उनको में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस और how you can use them to understand the exam. Similarly for paper 2 also you can use the same. वहां पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ मच टू प्रिपेयर, कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ समझ में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस अगर मिल जाते हैं कहीं से, आई थिंक हॉर्नबिल प्रोवाइड कराता है, बट उन्होंने लास्ट ईयर भी कंप्लीटली नहीं प्रोवाइड किया था। आई थिंक दे हैड ओनली प्रोवाइडेड 1 पेपर आल्सो, सो दैट वाज एन इशू। बट यू कैन यूज चैट जीपीटी का अगर आप थोड़ा फैक्चुअल जो डिटेल्स हैं वो आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, बट आप क्वेश्चंस उस पर डालिए और वो जो आंसर जनरेट करेगा आप उसको प्रॉम्प्ट्स दे दीजिएगा कि मुझे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से आंसर चाहिए, इतने वर्ड्स का आंसर चाहिए, इट शुड हैव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा। आप ये सारा कुछ उसको प्रॉम्प्ट्स दे दीजिए, इट विल ब्रिंग अप आंसर्स फॉर यू, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बिना वेरीफाई किए उसके आप फैक्ट्स को बिल्कुल यू कंसिडर इट सम सॉर्ट ऑफ गॉस्पेल, नो, बट उससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आए तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है मेरे आंसर का। बहुत बार हमें डाउट होता है कि कैसे पेज भरूंगी इतना, बिकॉज साइंटिफिक चीज है तो उसमें 2 लाइन में यू कैन एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट, तो कैसे भरेंगे। तो कभी कभी थोड़ा सा ये भी समझ में आता है कि क्या एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, रिलेटेड चीजों से कैसे और ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। तो यू अंडरस्टैंड दैट, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगेन कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पर टच अपॉन करना है इन अ पर्टिकुलर आंसर। कुछ आंसर्स को नहीं समझ में आ रहा है कि लिखना क्या है एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा एक वेग आइडिया तो मिलता है कि अच्छा, दिस वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो चैट जीपीटी यू कैन यूज अच्छे से फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज द प्रेपरेशन पार्ट वेगली। पेपर अटेम्प्ट करने की बात मैं बताऊं तो
आइडियली इसमें ना टाइम क्रंच आपको इतना नहीं फेस होगा बिकॉज दिस इज अ 200 मार्क्स पेपर कंपेयर टू द 250 मार्क्स पेपर दैट वी हैव फॉर सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल. तो टाइम क्रंच ऐसा सच नहीं होता है, बट आई वाज स्टिल राइटिंग टिल द लास्ट मिनट. ऐसा नहीं कि मेरा पहले खत्म हो गया था बिकॉज आपको ये सब इलस्ट्रेट करना है, ये वो करना है, सब कुछ करना है एंड ट्राई टू फिल द पेजेस टू व्हाटएवर एक्सटेंट पॉसिबल. नहीं हो पाता है तो चलो कोई बात नहीं, बट जहां पर भी 8 मार्कर्स में भी ट्राई टू fill the pages because वो psychological थोड़ा होता है. I think it creates a good impact on you. It shows that you are sincere towards the paper. You're making efforts in writing the paper. बस ये बात है, ठीक है. पेपर दोनों ही अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दिया था, वही मैं करती हूँ. उसके बाद आई विल जस्ट एक ही बात बतानी है कि पेपर अटेम्प्ट करने का, तो वो मैं बता दूँ. तो बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे करना है, जैसे हम लोग जीएस में, ऑप्शनल में, सिविल सर्विसेज में करते हैं. तो हाउ टू वैल्यू एड इन फॉरेस्ट्री. अब आई विल सी फॉर द थर्ड फोर्थ टाइम कि दिस इज अ टेक्निकल पेपर. तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं. जो आपने पढ़ा है ये अगर आप अच्छे से एग्जाम में लिखकर आ पाए, विच ट्रस्ट मी इज अ टास्क इन इटसेल्फ बिकॉज इतने सारे डिटेल्स हैं, इतना सारा कुछ है. तो अगर आप बस इस चीज को अच्छे से रेप्लिकेट करके आ पाते हैं एग्जाम में, दैट इज इट, दैट इज योर वैल्यू एडिशन. आपने जो डायग्राम्स हैं आपके बुक में या आपके नोट्स में, सर के नोट्स में, आप वो बना के आ पा रहे हैं. आप हर क्वेश्चन में wherever possible आप साइंटिफिक नेम्स लिख के आ पा रहे हैं, then your job is done. That is what makes a good forestry paper. ठीक है. उसके beyond you don't have to do anything extra. For paper 1 of both, for section A of both the papers. ठीक है. जो सेकेंड वाला पेपर भी है उसमें भी आपका जैसे जो वर्किंग प्लान है, उसका वर्किंग प्लान का जो कोड है, तो वो इट्स अ मतलब वो तो एक स्पेसिफिक कोड है, तो उसको आप मेमोराइज कर लीजिए. जो एटलीस्ट जो टेक्निकल स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं वो सब चीजें आप रिकॉल कर, वो सब चीजें को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. जो आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन वगैरह वाला पार्ट है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ब्रिजेस के, ये वो. एंड इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चंस यू विल सी दैट दे आर ऑलवेज रिपीटेड, ऑलवेज आस्क्ड इस तरह के क्वेश्चंस. तो वो वाले डायग्राम्स पे अच्छे से कमांड कर लेना, उनको प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार. ठीक है. तो दैट इज व्हाट योर वैल्यू एडिशन इज. कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. जो नोट्स में है, जो वीडियोस में सर ने बताया, दैट इज इट. इसमें बस उसको ही अच्छे से रिवाइज करना है, उसी को याद करना है, उसी को पेपर में लेकर आना है इन द गिवन टाइम दैट. ठीक है. दोनों ही पेपर्स के सेक्शन बी की बात करें तो ये आप देखेंगे कि थोड़ा जेनेरिक टाइप का सेक्शन होता है. ठीक है. पेपर 1 में भी आपके पास वो एग्रो फॉरेस्ट्री है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट जेनेरिक टॉपिक्स. ठीक है. वहां पर आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल है, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट वाले लॉज हैं, बट देन अगेन यू आल्सो हैव मेडिसिनल प्लांट्स एंड बेसिक थिंग्स जो कि शायद पता भी रहता है बहुत कुछ. ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर द साइंटिफिक नेम्स हियर आल्सो. जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो भी पेस्ट्स हैं, ट्रीज के, जो डिफरेंट ट्रीज के जो पेस्ट्स होते हैं, ये अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन. मेडिसिनल प्लांट्स वेरी फेवरेट क्वेश्चन, आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. फॉरेस्ट फायर वेरी फेवरेट एरिया फॉर द एग्जामिनर्स. तो ये सारे आप एरियाज पर अच्छे से फोकस करें. एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा, जो दोनों का ही सेक्शन बी है, यहाँ पर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स वाली चीज को ला सकते हैं. कहीं से केस स्टडी अच्छी मिल रही है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर, फॉरेस्ट लॉज में कुछ अगर रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, फिर आपके मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह में तो चलिए कम स्कोप है, बट फॉरेस्ट फायर वगैरह में भी यू कैन ओपन द क्वेश्चन विथ अ रीसेंट स्टैटिस्टिक ऑन फॉरेस्ट फायर्स. So that could be appreciated, but you realize that the scope is pretty limited. Pollution वगैरह में जो है वहां पर कुछ latest data है, अगर आपके पास कोई अच्छा case study है, a little bit of that. ठीक है. But अभी in the initial phase of the preparation, forestry जब आप first round में कर रहे हैं तो please don't run after the value addition part अभी. ये मतलब this is a luxury and you do it in the second time, okay, if you have the time. अभी फर्स्ट टाइम में जितना सर के नोट्स में है, जो वीडियोस में है, या जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हैं वहां पर जितना है, उसको अच्छे से आप कर लीजिए, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जस्ट देन योर जॉब इज डन. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट वैल्यू एडिशन. और इसी से रिलेटेड मैं पेपर अटेम्प्ट की एक बात बताऊंगी कि
दोनों ही पेपर्स के जो सेक्शन ए है, दे आर लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ फॉरेस्ट्री, स्पेशली पेपर 1 का जो सेक्शन ए है, विच इज द सिल्वीकल्चर पार्ट, जो बेसिक्स ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम्स हैं, मैनग्रोव्स, कोल्ड डेजर्ट स्पीसीज, ये बिल्कुल दिस इज व्हाट मेक्स अप फॉरेस्ट्री, राइट? तो it is appreciated when you prepare these sections well, and if possible, if you're able to attempt 2 of the optional wala jo questions rehte hain, if you're able to attempt 2 of the optional wala questions from section A in both the papers, that is appreciated, because that shows that आपने subject को अच्छे से पढ़ा है और आपने subject को अच्छे से समझा है. Because see, watershed management, environment conservation, pollution, everybody will be able to write. Global warming, ये सब तो लिख ही लेते हैं सब. बट सिल्वीकल्चर वगैरह लिखना या फॉरेस्ट मेंसुरेशन लिखना, दैट शोज दैट यू आर प्रिपेयर्ड. सो आप कोशिश इस तरीके से करिएगा, तैयारी इस तरीके से करिएगा कि मैं दोनों का ही टेक्निकल वाला पार्ट्स को ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी. आप सेक्शन ए से दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा. हैविंग सेड दैट, आई हैड आल्सो गॉन विद द सेम माइंडसेट लास्ट ईयर. पेपर 1 में आई वाज एबल टू एग्जीक्यूट दिस. वहां पर मैंने वो जो जेनरिक वाला पार्ट होता है पोल्यूशन वगैरह, उससे बस एक क्वेश्चन किया, एंड ऑल्सो रियलाइज दैट पार्ट विल नॉट बी वेरी स्कोरिंग, बिकॉज एवरीबडी विल बी राइटिंग द सेम थिंग्स ओनली अबाउट पोल्यूशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट. ठीक है, तो वहां से मैंने बस एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन मैंने सिल्वीकल्चर से किए. बट पेपर 2 आई थिंक लास्ट ईयर थोड़ा टफ भी था, और पेपर 2 में थोड़ा सा वो मैथमेटिकल पार्ट्स आ जाते हैं, मुझे लगता है यील्ड मैनेजमेंट वगैरह ये सब जो आ जाता है, तो मेरा थोड़ा आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद दोस पार्ट्स. और मुझे वो पेपर देखकर लगा कि आई विल नॉट बी एबल टू, मतलब इफ आई अटेम्प्ट टू ऑप्शनल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, तो माय स्कोर विल फॉल बिकॉज आई वाज नॉट थरो विद देम. एंड सेक्शन बी के जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी. तो वहां पर इवन दो आई हैड गॉन विद दैट स्ट्रेटजी इन माइंड, वहां पर आई कुड नॉट एग्जीक्यूट इट, और फिर मैंने एंड में आई हैड टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी. ठीक है, so this was my broad strategy for forestry. So I think we can take a few questions right now regarding the forestry preparation. और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टच अपॉन कर लूंगी जीएस और जीके को लेकर, बिकॉज उसमें वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को. तो आपको कुछ अगर पूछना है, आई थिंक देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स आल्सो. फर्स्ट आई विल गो थ्रू द चैट बॉक्स एंड देन आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू. Answer, somebody has asked about increasing answer writing speed for to complete in 3 hours. I don't think that will be too much of an issue here, because as I mentioned, 200 marks ka paper hota hai. But if you are feeling that you are struggling with speed, then you can maybe practice some answers, write maybe you can time yourself उस हिसाब से कि एक सेट में रेडी बैठूंगी and I will finish it in 35 minutes or so, ऐसा कुछ you can. Somebody has asked if they have chosen zoology and botany. I think that is absolutely fine. I think rank 1 in 2021 or 22, her name was Shruti ma'am. She had also taken zoology and botany as her optional papers. So I don't think that is a problem. Whatever you want to take, it's just that because forest service है, तो आगे भी आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और आगे आपको ट्रेनिंग वगैरह में भी काम आएगा. So most people इसलिए forestry choose करते हैं, also because it is easier to cover in a small period of time. ठीक है, टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, हॉर्नबिल का ही लिया था इसके लिए, बट आई थिंक वहां पर थोड़ा इशू था, मतलब चेकिंग में थोड़ी डिले हो गई थी, मेरा एक ही चेक हो पाया था टेस्ट. सो आई डोंट थिंक it's not essential. If you want, you can take a test series, but make sure that it gets evaluated on time. And if you're not keen on taking test series, you can just write the previous year questions and maybe self-evaluate, use ChatGPT, or maybe previous year questions का solution है, so you can just use that. But वैसे इसमें इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, अगर आप अपने नोट से भी कंपेयर कर लें तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मिस किया, क्या नहीं किया. अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग का एक और चीज मैं बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन पर यहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, तो आई यूज टू ट्राई कि जहां पर भी संभव होना मैं टेबल के फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर पा रही हूँ, लेट्स से प्लांटेशन के पैटर्न्स जो है अलग अलग टाइप के, या
किन तरीकों से आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऑल ऑफ दैट, उसको भी आप अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में डाल रहे हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प्स. It makes your presentation better, more organized and structured. So that is appreciated by the exam. So if possible, please, you can try doing that in the exam. Yes, mathematics optional is available in forest services. Mm. Yes, see, difficulty remembering scientific names is a problem with a lot of people. Many engineers appear for the exam. I come from a biology background, so मुझे ये उतना challenging नहीं लगता था. But if you have a problem with that, तो simple फंडा, जितनी बार आप देखोगे एक चीज को, जितनी बार आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे, उतना इजी होगा. तो if you can do that, just list down the important scientific names on a piece of paper, maybe stick it on your wall, see it every day before you go to sleep. अब बार बार देखते रहिएगा, तो your memory will keep refreshing. And try to थोड़ा सा maybe use common sense and try to link things if possible. जैसे सैंडल है तो उसका सैंटलम एल्बम है, तो वो आप सैंडल से सैंटलम उस चीज को आप लिंक कर सकते हैं. there are some also other species also जिनका थोड़ा सा ऐसे लॉजिक निकल जाता है नाम में. Just give me a second if but हाँ, थोड़ा तो आपको याद करना पड़ता है. I don't think there is a sort of, I am not able to find such कोई ऐसा logic मुझे मिल रहा हो यहाँ पर. For somebody who is completely coming from a non-bio background. But maybe if you go through it again and again, आप कुछ पेड़ों के नाम आप बहुत बार सुनिएगा, Zadiracta indica, टेक्टोना ग्रैंडिस, ये सब तो रटा जाता है किसी को भी. मुझे भी पहले टीक का साइंटिफिक नेम नहीं पता था अंटिल सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम, बट वो इतना रटा गया है कि आई कैन, मतलब बहुत सारे नाम ऑलमोस्ट याद हो गए. सो वो बार बार करने से हो जाता है. इट्स नॉट एन इशू, मतलब it's an issue for everybody almost, and at the same time it is also not that big of an issue if you just keep revising. Okay? So all previous questions for forestry, I had referred to the Hornbill wala jo tha, but it was not complete. I don't think there's a solved book particularly. तो आपको जितना मिल रहा है वो आप करिए, बाकी आप ChatGPT यूज कर सकते हैं. प्रीलिम्स की बात मैं अभी नहीं करूंगी, बिकॉज अभी मेंस पे फोकस रहना चाहिए आई थिंक. Value add in Vidyanshu sir notes very negligible. Even if you don't do it, it's absolutely fine. मैंने बस मतलब peace of mind के लिए, I think I was just doing whatever I was doing, but it's not essential. It's not compulsory. I think it's good enough. 2 months is more than enough to finish forestry option. So please, I think I mentioned this in the beginning of the session itself, that please don't have any doubts regarding this. Okay, please don't be in self-doubt for this. It is absolutely fine. There are people, who take up 2 optionals after this. Many people have taken up forestry and geology after the civil services mains exam in a period of 40 to 45 days, and they have still cleared the exam. So trust me, it can be done. Okay? Zoology optional, maybe, if somebody is from that, because I know it's a very rare optional. If you are from zoology optional, maybe you can stay till the end and we can have a discussion, because I think it will be irrelevant for a lot of people. Yeah, for the GK part, I will touch upon the science and tech वगैरह, I will see. My marks in both the papers, I am not able to recall ठीक से, but I think I had better marks in paper 2. And my overall score in forestry was 237, which was not the highest. There were people who got 258 or something also this year, but decent score. I did not have geology optional, so I don't think I'll be able to comment on that. Prelims, I would not take right now. What worked for me in forest services and did not work in CSE, I really don't know. Maybe I had prepared well for both exams, I felt, but something had gone wrong with my optional paper in civil services. I was not in a good state of mind that day, so maybe that lowered my scores, and my interview scores was also not good in CSE. So that.
First optional, somebody has chosen agriculture. I think the second one can be forestry. I think you can go through the videos first, and simultaneously once the video is over, once 2-3 videos are over relating to a topic, then after that you can go through the notes of sir, and it will be sort of like a revision for you. If you want, you can do it the next year also. तो फिर वो एक दिन के गैप के बाद एक sort of revision जैसा भी हो जाएगा. So whatever you are comfortable. Number of pages in 8, 10 and 15 markers. I think as far as I remember वो वही चीज है. 8 markers में आपको 2 pages मिलते हैं, 10 markers में भी 2 pages मिलते हैं, and 15 में आपको 3 pages. So I do not have any handwritten notes, so I think that solves that. And okay, somebody has asked a lot of questions. Forest mensuration में yes, there are a lot of diagrams and थोड़ा सा मेरे लिए भी struggle था, but वो आप करते रहेंगे, आप revise करेंगे तो हो जाएगा. See, it is difficult initially, but nothing is impossible यहाँ पर. You can definitely do it with examples. Okay, I'm just going through the last few chat box questions. After that, whoever has raised hand, I'll just address it. Okay? I have no idea about normalization and all, so I don't think I can comment on it. And I do not have a guidance channel on Telegram, but there is a group which has been created on Telegram, which has some senior mentors and I think 5 to 6 toppers from this year also. So I'll share that link with Ved sir, and maybe he can send it to you guys. Zoology optional again, I'll take at the end if there's somebody. Okay, I think largely that solves the questions in the chat box. Somebody has raised their hand, so yeah, you can please ask. And you can turn on the video if it's possible. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, my attempt is in 2027. Abhi, there are still 1.5 years left. I am reading the newspaper daily, but I don't know if I should start making notes from the newspaper. I do make notes, but they're not as detailed as they should be. So when should I start making notes out of the newspaper? Okay, firstly, I think we are having we are specifically addressing the forest mains concerns here. But okay, if you have asked, I'll just say it in one line. First of all, your attempt is in 2027. It's very far away now. I mean, there's a lot of time. You really don't. I never made newspaper notes. I just had taken a few interesting points that I would find in the newspapers and maybe note it down somewhere. But nobody. I don't think it's needed that you make notes ever, even when you're in the preparation year. You don't have to make like proper notes out of it. And definitely not now. So yeah, that's that. And I think now we can please restrict the questions or doubts to mains. Anybody else? Yeah. Anybody else with any doubt regarding to forestry optional? Okay. Yeah, please. Antik Chaturpati. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, what should be the ideal timeline that we should follow, considering that I have picked up 2 new optionals? And like, by when should we start revising for GS? GK, in fact, GK and English. Yeah. Okay. So, what is your second optional? Is it geology? Yes, ma'am. Okay. So, see, I did not have geology, but I've heard from again my peers that it is a very, I think you need to revise it continuously. You need to be in touch with it continuously, otherwise you forget it. So if that is the case, maybe I'm sorry. Please say. Nothing. No, ma'am. Please continue. Okay, just switch off your mic. Yeah. Yes. So I think I had one new option. So my strategy was that I had gone through the first round in 10 days. After that, I had done my second optional, जो कि मेरा common था with CSE. So I did that in 5-6 days. Then I came back to forestry. Then I did again my CSE wala for 3-4 days. So I had done this, but I understand if it is 2 new options, तो थोड़ा सा different होगा.
now this is, I think it's up to you if you think you can manage it in a way कि आप 10 दिन ये कर रहे हैं 10 दिन वो कर रहे हैं, अगर उस तरीके से मैनेज हो पाता है, if it works then you can do that. But as far as I've heard, I am not sure about this myself. As far as I've heard, कि for I think geology को continuously करते रहना पड़ता है. So if you think you need that too, then maybe you can devote certain hours for geology also every day. So I'm not the best person to advise on that maybe. But like let's say अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, है ना? तो फर्स्ट मंथ में आपको जितना कुछ भी न्यू फिनिश करना है आप वो फिनिश डेफिनेटली कर लो. That should be your biggest and broadest target. Whatever new you have in both the subjects, that should be over. अब आप ये रोज दोनों सब्जेक्ट्स करके कर रहे हैं या फिर आप एक एक करके कर रहे हैं, that is up to you. But ये होना चाहिए, and the next month should be for revision. And the GK question that you have asked, that I will address. अभी बस जब मैं GK वाला करूंगी ना, GK और English बताऊंगी, तो I will address that part also. But just to say briefly, it doesn't need more than 5 days in any case. Any more questions for forestry? Otherwise, I'll shift to English and GK. Okay, so I think we can. Yeah, please. Hi, ma'am. मैम मेरे को Yeah, hi. जैसे ये फॉरेस्ट इन्वेंटरी वाला पार्ट है, तो वो कितना डिटेल में करना है, मतलब छोड़ सकता हूँ क्या, मतलब हो ही नहीं रहा है सर, ऐसा फील हो रहा है. You know, now it's too early to say कि हो नहीं रहा है. अभी तो आपके पास 2 महीने हैं. How can you say now कि हो नहीं रहा है? शुरू में मेरे को कैसे? थोड़ा ट्रैवलिंग वो है, मेरे को 15-20 दिन बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा, और सेकंड वो वैसा है. ठीक है. तो आप 45 डेज मान के चलो, उतना ही मिलता है सबको. हर मेंस के बाद सबको पिछले सालों में इतना ही मिलता था. So you know, anyway it's too early to say कि ये नहीं हो रहा है. फर्स्ट राउंड में ये सब चीजों को देख के बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है. मुझे भी लगा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. एंड मुझे वो साइंटिफिक नेम्स वाला पार्ट ओवरवेलमिंग नहीं लगा था, बट पेपर 2 मुझे भी लगा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सेक्शन ए वाला पार्ट स्पेशल. बट आप जितनी बार भी करो, उतनी बार करते रिविजन इज सिंपल. एंड अगर आपको लग रहा है कि समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, तो आपने जो भी सोर्स रेफर किया है आप उसको कर सकते हो. यू कैन गूगल, एंड देयर आर नॉर्मली भी वीडियोस हैं. मैंने एक जो अंकुर अवधिया सर वाला सजेस्ट किया, मे बी यू कैन गो थ्रू देम अगर वहां पर वो टॉपिक अवेलेबल है. नहीं भी तो देयर आर मेनी प्रोफेसर्स, टीचर्स ऑफ फॉरेस्ट्री जिन्होंने मेंसुरेशन वगैरह का ये सारा कुछ डाला हुआ है वीडियोस यूट्यूब पर. इफ यू आर गेटिंग स्टक फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्या है क्या नहीं है, जस्ट गूगल, just put on YouTube what is forest inventory, I want to understand, forest mensuration समझना है. तो आपको ना, जैसे मुझे इंस्ट्रूमेंट समझने में दिक्कत होती थी, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, सब एक जैसे दिख रहे हैं. तो there are so many videos, बाहर के भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, they're going in the field and showing कि अच्छा this is what the instrument looks like, इससे मेजरमेंट ऐसे लेते हैं. उन चीजों की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो देखकर थोड़ा सा याद करना इजी हो जाता है. So that is what I had done. Thank you, ma'am. Thank you so Yeah. much. I think somebody had asked if we should write conclusion in forestry or not. See, you can try to write in as many questions as possible. But यहाँ पर वो वाला चीज तो जो हम लोग GS में यूज करते हैं कि forward looking this and that doesn't really work. And there's little value you can add in technical papers when it comes to conclusions. So even if you are not able to write in a few questions towards the end, let's say, तो इट्स ओके. बट आई विल नॉट से कि आप ये माइंडसेट ही लेकर जाए कि नहीं लिखूंगा कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली लिखिएगा हर क्वेश्चन में, आई रिटन फॉर ऑल, चाहे वो एक लाइन का ही सही. बट कंक्लूजन मेरा भी मिस हुआ था कुछ क्वेश्चंस में. ट्राई टू राइट इन एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. थोड़ा जेनेरिक टाइप का भी हो गया तो हो गया. अगर वैसे इस बार आपके पास टाइम है 2 महीने का, तो कुछ क्वेश्चंस में इफ यू आर एबल टू फाइंड, जैसे लेट्स से मैनग्रोव्स का क्वेश्चन आया, आपने सब कुछ लिख दिया, कंक्लूजन में थोड़ा बहुत अगर आपने लिख दिया कि मैनग्रोव्स अलायंस बना है, मिष्टी स्कीम है, तो दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन ओनली. तो जहां पर थोड़ा बहुत इन चीजों का स्कोप है, आई थिंक फॉरेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस में आप क्लाइमेट चेंज को बस ले आ सकते हैं एक क्लास में कि फॉरेस्ट का ये बेनिफिट्स है और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से बचाना है. तो वेरी जेनेरिक कंक्लूजन बट कैन बी यूज्ड इन मेनी आंसर्स इस तरीके से. सो थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है, यू कैन थिंक अबाउट इट. थोड़ा कंक्लूजन के टेम्पलेट्स अगर प्रिपेयर करना पॉसिबल है तो कर सकते हैं, बट ये सब बाद की चीजें हैं. डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन दीज थिंग्स इनिशियली ओनली. पहले आपका काम हमेशा ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट पर कमांड गेन करना है, वो करना है. ठीक है, you have time, you should be able to do it, but yeah, it won't be possible for every question.
एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. अब जो क्वेश्चन आएगा कि नेम 5 ट्री स्पीसीज हो, यू नो, या नेम 5 मेडिसिनल प्लांट्स, तो उसमें आप क्या कंक्लूजन डालिएगा? Maybe if you think too much, then maybe you can link it with Ayush and all that, but it's really not needed. They don't want to read all of that because they know that, you know, everybody knows these things. So they want to know कि आपको वो trees के जो herbs हैं उनके scientific name, common name, उनका use जो है आपको ये पता है या नहीं. वहां पर आप conclusion नहीं भी लिखें, आप generic सा लिखते हैं तो भी चलेगा. Try to write, but don't go with the mindset कि नहीं लिखूंगा. तो टाइम नहीं मिले, कुछ समझ नहीं आए, तब भले ही छोड़. सो ये हो गया. आई थिंक फॉरेस्ट्री पे काफी हमने ये कर लिया है. अब आई ब्रीफली टच अपॉन इंग्लिश एंड जीके. ज्यादा कुछ है नहीं बताने को. इंग्लिश में मैं बताऊंगी ऐसे होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स, लेकिन आपको आई थिंक 1000 वर्ड्स में ही लिखना होता है. as far as I can remember, yeah, 800 to 1000 words है इसमें. And the good thing is that at least one topic will always be environment related. So if you can, you know, sort of prepare any template, any interesting, innovative template, या any interesting, innovative, आपको आपने कहीं कुछ बड़ा interesting सा पढ़ लिया, forest related या environment related, कुछ इस तरीके से पढ़ लिया climate change वगैरह का, जो थोड़ा आपको हटके लग रहा है, तो आप वो, you know, रख सकते हैं अपने पास कि introduction या conclusion में use हो सकता है, ऐसा आप रख सकते हैं. But apart from that also, if you go through the previous year questions, I think my peers had done that and they found that, you know, कुछ themes है जो कि काफी repeat होते हैं essays में भी, education, health, ये सब repeated themes हैं. यहाँ पर आपको philosophical essays नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो आप उन topics से related आप थोड़ा बहुत prepare करके जा सकते हैं, ठीक है? Letter में, report में, you should know the format. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्रिएटिविटी. लेटर में तो ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है. इट्स 2 पेजेस, जो पूछा गया है उतना ही आपको लेटर में लिखना है, ठीक है? रिपोर्ट में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी का स्कोप है. इस बार इनफैक्ट नॉर्मली आई थिंक 2 पेजेस होते थे, इस बार हमें 4 पेजेस मिले थे फॉर रिपोर्ट राइटिंग. सो आई मे बी दिस विल हैपन दिस ईयर ऑल्सो. तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकता है इस चीज के लिए. तो वहां पर आपका जो आप रिपोर्ट राइटिंग करें, वहां पर आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी ला सकते हैं. सो आई थिंक हमारा कुछ रिपोर्ट आया था कि आपको इलीगल पोचिंग पर कुछ लिखना है, तो आप कहीं कुछ रीसेंट पढ़ा हो उससे आप लिंक कर दीजिए, कुछ कहानी बना दीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ था, क्यों हो रहा है. तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी अप्रिशिएट होता है. ये हो गया. इसके बाद प्रेसी, इफ यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम, मे बी यू कैन प्रैक्टिस वंस और ट्वाइस. अ फ्यू ऑफ माय पीयर्स एंड फ्रेंड्स हैड डन दैट. मैंने नहीं किया था प्रैक्टिस प्रेसी का, बट बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल हमेशा से. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कंप्रेस करने में दिक्कत होती है, देन यू कैन डू इट. मेन प्रेसी का ये है, आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आप सारे टॉपिक्स को सारे जो मेन यू नो पैराग्राफ्स का जो आइडिया है वो आपके प्रेसी में आना चाहिए. आप अपने वर्ड्स में लिखिए, बट यू शुड नॉट मिस एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रेसी ऑफ द पैसेज कंप्लीटली. यू विल बी एबल टू, यू विल डेफिनेटली मिस सम, यू नो, कुछ उसमें कुछ बातें लिखी होंगी, कुछ पॉइंट्स तो आप मिस करेंगे, बट किसी आइडिया को कंप्लीटली मिस मत करिएगा प्रेसी. दैट शुड बी योर गोल. Comprehension, though, I think it's the easiest part. You have to just answer the questions. Here again, I will say something that my peers suggested. You don't just, you know, copy paste from the passage. थोड़ा बहुत आप उसको elaborate कर सकें अगर, तो कर सकते हैं थोड़ा. इसके बाद जो सबसे important part है, that is the grammar part, and that is also the most boring part. ठीक है? Grammar is, you know, it's like maths. सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. तो आप सही करने पे फोकस करेंगे तो वो those are 50 easy marks for you. ठीक है? और इसका प्रिपरेशन में कुछ ज्यादा नहीं करना है. मैंने जो पिछले 8-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितना भी ग्रामर था वो थरोली किया था. 2 बार 3 बार उसको किया था. कुछ डाउट्स होते थे तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप वगैरह है उस पर आपस में डिस्कस वगैरह कर लेते थे हम लोग. तो उससे थोड़ा सा दिमाग खुलता था कि अच्छा ये अप्रोच में भी मैंने गलत लगाया था या किसी और ने गलत लगाया था. सो वो जो ग्रामर पार्ट है उसको आप सॉलिड कर लीजिए. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? अच्छा, कुछ वो जो पार्ट्स आते हैं, ईडियम्स, होमोफोन्स, ये सब जो आते हैं, तो ये आपको लगेगा कि कहाँ से इतना सारा प्रिपेयर करूं, कितना प्रिपेयर करना है, कितना नहीं करना है. तो यू नो, ये आपको कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पे कुछ इस तरह के कंपाइलेशंस आ जाते हैं. मैंने भी किसी टेलीग्राम ग्रुप से ही उठाया था. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ठीक से, बट आई विल शेयर दैट ग्रुप का लिंक विद सर एंड ही विल शेयर इट विद यू, सो यू कैन ज्वाइन. वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं.
तो उसमें आपको है कि आप वहां से कुछ idioms वगैरह के compilations को prepare कर सकते हैं, but only after you have done all the idioms or homophones that have come in the previous year questions, at least 8 to 10 years. ठीक है, आप वो कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत repetition भी होता है या related कुछ पूछ देते हैं. वो एक बार कर लिया तो उसके बाद फिर आप ये एक्स्ट्रा ये जो कंपाइलेशन है उससे आप कर सकते हैं. बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज द प्रीवियस क्वेश्चंस. ग्रामर पार्ट इज डूएबल बाय जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो करना, टेंस एंड ऑल दैट इज डूएबल. आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कैन बी डन. अगर आपको रूल्स में कंफ्यूजन है, रेन एंड मार्टिन वगैरह का आई थिंक ई वर्जन अवेलेबल होता है, वहां से आप रूल्स रेफर कर सकते हैं. या अगर रूल्स मतलब रेन एंड मार्टिन में नहीं जाना, जस्ट गूगल ये रूल क्या होता है, आस्क समबडी हु यू थिंक नोस, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाए. ठीक है, तो इंग्लिश में यही है. एक चीज समथिंग दैट आई वुड शेयर कि ऐसे में जैसे मैंने बताया कि एक आपको कुछ ना कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड आएगा ही आएगा. आई थिंक हम लोग के साल में कुछ डिफॉरेस्टेशन या डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर इस तरह का कुछ पूछा गया था. तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट का एक आइडिया था कि if it could be like a dialogue between two animals, so that could be an interesting take on any environmental issue, because we always think it from a human perspective, हम लोग को कैसा लग रहा है. But you know, when animals are talking, how are they thinking कि अच्छा ये क्या चल रहा है हमारे environment में, what is happening to our forests. So ये एक मेरे आइडिया ऐसे घूमते फिरते कभी मेरे दिमाग में आया था, and I thought I would be able to use it. तो ये जो मैंने ऐसे लिखा था, तो I had done something like this कि I had started the introduction. उसमें I think two orangutans are just talking to each other, and they went to play in the other they went to play in one side of the forest, and वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो सारा कुछ कट चुका है. जहाँ पर वो लोग 1 महीने पहले शायद खेलते थे या घूमते थे, तो वो कट चुका है. So now they're talking कि what has happened, और ये वो मतलब थोड़ा सा you know एक जो एनिमल्स को थोड़ा सा सेंटिमेंट्स दे दिए, थोड़े से इमोशंस दे दिए, और उनके डायलॉग के थ्रू थोड़ा सा मैंने कन्वे करने की कोशिश की कि आइडिया क्या है. तो दिस इज समथिंग आई डन. प्लीज डोंट रिपीट इट बिकॉज फिर वो थोड़ा फनी हो जाएगा. बट यू कैन थिंक ऑफ समथिंग सिमिलर कि एक सिंपल टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन वाला, बट कहाँ आप थोड़ा सा कुछ अपना कुछ नया अगर आप ला सकते हैं, कुछ एक अलग नजरिया ला सकते हैं अगर, तो दैट कैन हेल्प. ठीक है, इंग्लिश इतना हो गया. जीके में अगर आपने सिविल सर्विसेज का मेंस दिया है तब तो देयर इज रियली नथिंग टू डू. मैंने पिछले साल, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया था, अच्छे से प्रिपेयर किया था, सो मेरा प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत कट हो गया था. मैंने बस 2 दिन प्रिपेयर किया है इसके लिए, जीएस के लिए. लास्ट का जो 2 days था, ओनली देन आई प्रिपेयर था जीएस. उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी किया था. इंग्लिश के लिए मैंने अलग से एक दिन में भी शुरू में 1 आधा दिन दिया था, बट इंग्लिश के लिए मैंने अलग से एक भी दिन उसके बाद नहीं दिया. बीच में कभी फॉरेस्ट पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गई, तो बीच में आधे घंटे किसी साल का ग्रामर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया. दैट इज इट. दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू इट. मुझे वो ग्रामर वाला पार्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा मजा आता था, इसलिए आई यूज्ड टू डू इट. बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होता था. बट प्लीज, इट इज एन एडवाइस कि आप ना ऐसे 4-5 दिन वेस्ट मत करिएगा कि आज 4-5 दिन में सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा. इट्स इजियर टू डू दैट, राइट. किसी को भी फॉरेस्ट्री की टेक्निकल डिटेल्स याद करना पसंद नहीं है, उससे ऑफ कोर्स इजी है कि आप इंग्लिश पढ़ो, आप ऐसे लिखो, लेटर लिखो. दैट इज ऑफ कोर्स इजियर फॉर एवरीबॉडी, बट प्लीज डोंट डू इट पूरा दिन उसके पीछे वेस्ट. अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका जरूरत है, मे बी आपका फ्लो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो आप फॉरेस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइए, आधे 1 घंटे में कुछ मे बी एक रिपोर्ट लिख लिया, या आधे घंटे में ग्रामर सॉल्व कर लिया 1 साल का, वैसे आप कर सकते हैं. एंड मे बी लास्ट का अगर आपको मन करे तो 1 आधा दिन, नॉट मोर देन दैट प्लीज फॉर इंग्लिश. जीके में मैं बोलूंगी कि अगर आपने सिविल सर्विसेज दिया है तो डेफिनेटली नॉट मोर देन 5 days एट मैक्स. अगर आपने नहीं दिया देन मे बी इट वुड टेक 9 to 10 days फॉर श्योर. उसमें आपको क्या करना है, आप यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, आप देखेंगे कि सेक्शन जीके में 6 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 सब पार्ट्स. यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस आएंगे, एंड यहाँ पर इट इज हिस्ट्री अनलाइक आर्ट एंड कल्चर दैट वी हैव इन सिविल सर्विसेज. ठीक है, तो
हिस्ट्री में आपको जैसे जो हम लोग मे बी एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस या किसी किंग के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाइएगा तो आप देखिएगा कि कुछ चीजें ये लोग बार बार पूछते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यास, मुगल्स, शेरशाह सूरी वगैरह भी पूछा हुआ है शायद 1-2 साल। तो ये सब बहुत फेवरेट थीम्स हैं इनके, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये तो खैर वहां पर भी पूछते हैं। सो इन चीजों का जो हम लोग जो प्रीलिम्स के टाइम पे जो प्रिपेयर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता था, कैसे डिविजन्स होते थे किंगडम के, टेरिटरी के, तो वो सब चीज आप थोड़ा ब्रश अप कर सकते हैं। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दिस इज समथिंग जो आई थिंक सभी का छूट जाता है, प्रीलिम्स के बाद कोई भी नहीं करता है ये। तो दिस इज समथिंग जिसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स बिकॉज ये थोड़े रेपिटेटिव थिंग्स पूछे जाते हैं। Please analyze the previous 8 to 10 years questions for GK also अच्छे से। तो ये आपका GK का पार्ट हो गया, सॉरी हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑलवेज पॉलिटी। पॉलिटी में भी रिपीटेड थीम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फेडरलिज्म, आई थिंक इलेक्शंस वगैरह, ये सारा कुछ काफी पूछा जाता है। वही सब चीजें जो आपके सिविल सर्विसेज के पॉलिटी में भी आई थिंक वी नो कि ये सब काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वहां पर भी। तो मेरा वहां का प्रिपरेशन था तो मैंने बस ऊपर से नोट्स को बस पलट लिया था। अगर आपने सिविल सर्विसेज नहीं दिया तो जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। नहीं है नोट्स तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स या DPSPs, ये सारी चीजों पे जो स्कोप है क्वेश्चंस का, उस पे आप बहुत ब्रीफ नोट्स अगर प्रिपेयर कर लें। इसमें प्लीज अगर आप आपने सिविल सर्विसेज नहीं भी दिया है मेंस और आप सीधा ये दे रहे हैं तो भी इट्स नॉट नीडेड कि आप GK वाले पार्ट के लिए बल्कि नोट बनाएं। जो भी आप बना रहे हैं प्लीज बहुत ब्रीफ नोट्स बनाएं इसमें, मे बी 5-6 पॉइंट्स फॉर वन एस्पेक्ट, और जो भी कुछ जो टेक्निकल डिटेल्स हैं 1-2 जो रहते हैं, मे बी केस का नाम है या कुछ है, वो आप वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑलवेज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अगेन सिविल सर्विसेज पीपल विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज सेम चीजें पूछते हैं, सेम चीजें आती हैं उसमें भी। जिन्होंने नहीं किया है आप थीम्स देखिए कि कुछ जो रिपीट हो रहा है, डोंट गो थ्रू एवरी इशू, उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट कुछ बेसिक इश्यूज जो आपको लग रहा है कि थीम्स में आए हुए हैं, मे बी कि ग्रोथ रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, इस तरह की चीजें थोड़ा बहुत आप रेफर कर सकते हैं मीन्स 365 से, नॉट वेरी टाइम। फिर आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन जो होता है दैट इज द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत रहता है इसमें, तो यहाँ पर भी अगेन आई नॉट डन एनीथिंग स्पेशल, इसमें ऊपर से देखा था बस। बट जो भी आपके सिविल सर्विसेज के अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप उसके जो मेंस वाले नोट्स हैं उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, that should be sufficient for this one. And of course go through the previous questions. Question 5 and 6 थोड़े से ट्रिकी होते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा आपका साइंस वाला पार्ट आता है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ इसमें पूछा जाता है। एंड इसमें कुछ चीजें ऐसे अनफेमिलियर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपको लगा है कि कहीं सुना नहीं है, आइडिया नहीं है। तो पहली बात तो ये कि उन चीजों के पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना, बिकॉज दैट इज द सेम फॉर एवरीबडी। Nobody has read science वगैरह इतना डिटेल में कि कुछ एक कम्प्लीटली नया टर्म बताओ, जैसे कि सिविल सर्विसेज के मेंस में भी होता है ना। सो उस चीज को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहली बात तो आपका सॉलिड पार्ट्स जो नंबर जो आपके आएंगे वो शुरू के 3-4 क्वेश्चन से आएंगे, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इससे आएंगे। ये दो क्वेश्चन में सबको स्ट्रगल होगा, बट आई विल रिकमेंड दैट यू गो थ्रू एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन है, फोरम का है, विजन का है, जिसका भी आप रेफर कर रहे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एंड जो भी कुछ करंट इश्यूज आपको दिख रहे हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, उतना ही सब प्रिपेयर करते हैं। नोबडी इज गोइंग टू प्रिपेयर इट फ्रॉम एनीवेयर एक्स्ट्रा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो दिख रहा है और जो करंट है, बस दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो that is why I'm saying it will not take more than 5 days for those who have done civil services till tayari, and if you have not, even then I don't think it should take more than 10 days. 10 days भी शायद मैंने ज्यादा बोला, I think 8 days is sufficient. So इसमें आप प्लीज अपने टाइम को रैशनलाइज करने की कोशिश कर लेगा, ठीक है। जीके के लिए टाइम ज्यादा नहीं देगा, टाइम आपका ज्यादा ऑप्शनल के लिए जाना चाहिए, दोनों ऑप्शनल्स के लिए, ठीक है। एंड
somebody I think has put a question about present की diagram in GK वगैरह. हाँ, तो इसमें मैं ये बोलूंगी कि इसमें जो आप आंसर राइटिंग करेंगे जीके वाले में, इट विल बी द सेम एज सिविल सर्विसेज में, जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ट्राइंग टू राइट एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखना ही चाहिए 10 मार्कर्स में. वो जो सेम स्ट्रैटेजी वहां पर यूज होती है वही वो आप यहाँ पर भी यूज करिएगा. यहाँ पर आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज काम आ जाएगी आपको. जो हम लोग जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो हम लोग मैप बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट कैन बी यूज्ड सिमिलरली. ठीक है. नंबर ऑफ पॉइंट्स, आई वुड से कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब डेप्थ इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन नॉट राइट वेट पॉइंट्स, बट नंबर ऑफ पॉइंट्स जीके में तो मैं बोलूंगी कि बढ़ाओ. फॉरेस्ट में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट 10 पॉइंट्स फॉर 10 मार्क्स. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. अगर आप, बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव चीज है ना, अब आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म शेल्टर वुड के बारे में लिखो, तो मे बी मैंने तो कितने आंसर्स को थोड़े से मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में भी सच पॉइंट वाइज नहीं डाल के पैराग्राफ्स में भी डाल दिया था उसने, बिकॉज वो अब अलग अलग टाइप के वो सिस्टम्स हैं, तो उसको मैं कहाँ पॉइंट्स में डिवाइड करूँ. मे बी आप कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. डोंट ट्राई टू राइट वेक पॉइंट्स इन द ऑप्शनल पेपर लिखे ऐसे बस पॉइंट बढ़ाने के लिए. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. बट जीके में इट्स द सेम एज जीएस जो हम लोग करते हैं. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल आपको जीके और इंग्लिश दोनों में रहेगा. इंग्लिश में मुझे नहीं हुआ था, बट मैंने सुना काफी लोगों को हुआ था. सो आप उस चीज को थोड़ा सा रैशनलाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट आवर में आप ऐसे फिनिश कर लीजिए, सेकेंड आवर में आप ट्राई करिए कि आपका प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सारा पार्ट एटलीस्ट फटाफट ये हो जाए. एंड उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग में भी it will take you, I think it will take you 25 minutes or so, because 25, maybe even 30 minutes, because आपको 4 pages लिखने हैं. Letter 15 minutes में हो जाएगा. Grammar should take 15 to 20 minutes, not more than that. Comprehension and Pressy 20 to 25 minutes आप ऐसा मान के चलिए. Essay will take 1 hour. तो इस तरीके से आप rationalize कर सकते हैं अपने टाइम को. And for GK वहां पर आप देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पर आपको ये है, वहां पर आपके 20 क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे 24 क्वेश्चंस है शायद यहाँ पे जीके में, बट यहाँ पर पेजेस कम दिए रहते हैं. आई थिंक फॉर बोथ 20 एंड फॉर बोथ 10 and 15 मार्कर्स वी हैव ओनली 2 पेजेस. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप 10 मार्कर्स जो लिखेंगे जीएस में, जीके में, वहां पर यू विल एड्रेस 2 डिमेंशंस, एंड जो 15 मार्कर्स हैं उसमें आप 3 डिमेंशंस एड्रेस करेंगे. सो इन द उतने ही स्पेस में आप डिमेंशंस एक्स्ट्रा एड्रेस कर लीजिए एंड पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो दैट विल एड्रेस योर क्वेश्चन. ठीक है. उसमें फिर आपको पेजेस ज्यादा नहीं, तो क्योंकि पेजेस ज्यादा नहीं भर रहे हैं तो टाइम का मैनेज हो जाता है. तो 24 क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है, हो जाएगा, बट स्पीड शुरू से मेंटेन करके रखना, वरना पेपर खत्म करने में दिक्कत होगी. ठीक है. सो आई थिंक दैट इज इट अबाउट GK and English as well. Somebody has asked if they can do PYQs along with topics. First complete reading. I think आप PYQs along with topics ही करिए, क्योंकि फिर आपने पूरी पढ़ाई कर ली और फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा तो था, बट ये मैं किस क्वेश्चन में कहाँ कितना कैसे लिखूं, ये आपको नहीं समझ. तो आप साथ साथ में करते रहिएगा, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर. ठीक है. I do not suggest, if preparing only for IFS, I will not suggest 1 pages definitely. आप एक पेज में 4-5 टॉपिक्स को बिल्कुल छोटे छोटे में आप 4-5 पॉइंट्स अगर आप लिख पा रहे हैं, तो मतलब आप उस तरीके से वेरी शॉर्ट नोट्स प्लीज. यहाँ पर आप वो मत करिएगा. अच्छा, there are also some institutes which will provide some sort of compilations for these things. So you can also refer to that. वो एग्जाम के टाइम पे ही आता है. अभी ना जीके में प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. GK you please do, I think at least in November itself. 16th से मुझे पता है एग्जाम, बट आप अभी आपको GK करने की जरूरत नहीं. अभी आपका फोकस ऑप्शनल और उसके रिवीजन पे होना चाहिए. आप 5 नवंबर के बाद आपको मन करे तो आप उठा सकते हैं. मैंने तो लास्ट के 2 दिन में किया था, और विद्यांशु सर ने भी बोला था, जो उससे पिछले साल के रैंक 5 थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने लास्ट के 5 डेज में GK किया था. हाँ, बट अगर आप सिर्फ IFS के लिए प्रिपेयर किया है आपने, तब मे बी आप 1st to 7th 8th वाला नवंबर वाला टाइम वहां पर आप दे सकते हैं उसके लिए, एंड मे बी 1 or 2 days बिफोर योर GK एग्जाम यू कैन मे बी
use your time like that. And don't make कि एक पेज है पूरा proper notes नहीं, एकदम अगर notes बना भी रहे हैं तो एकदम 1 word 2 word points. You should just know कि जो technical जो factual aspect है या technical aspect जो लिखना है बस उतना लिखना चाहिए. Don't write sentences and all that. इतना time नहीं है. Focus more on your optionals. Agriculture optional का मुझे idea नहीं है, so I'm sorry I will not be able to help. PYQs आप साथ में. So I think I have tried to cover everything that I could about GK and English. Any more doubts? I think I can take a few more questions, 5 more minutes if we have. I am not, I don't think this is the right time to be taking questions regarding feelings. Maybe more time, we can have a session later on if needed. Letter report pages. Letter maybe you'll get 2 pages, I think 2 or maximum 3. I am not able to recall ठीक से. And तो 2 to 3 pages, उसमें आधा जगह तो आपका वो सब लिखने में चला जाता है ना, वो जो आपका फॉर्मेट है. फॉर्मेट भी आपको ग्रुप पे अवेलेबल हो जाता है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो CGSC वगैरह का फॉर्मेट होता है. जस्ट गो थ्रू दैट एंड जो जितना बोला है ना उसमें जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, ज्यादा बात नहीं घुमाना है उसमें. So that and report के लिए I think earlier there used to be 2 pages but now there have been 4 pages. हमारे साल पे 4 pages था, which was a surprise for many people and that is why थोड़ा सा English paper खत्म करने में time लग गया था लोगों को. So it's better to be prepared. I don't know what will happen this year but you can do that. Interview पहले mains, I think पहले mains हो जाए उसके बाद फिर interview preparation, उसके बाद we can have a session maybe later on. Short notes for forestry I had not prepared, so I had referred to, as I mentioned, I had referred to proper notes and please अभी इतने कम टाइम में करने की जरूरत नहीं. विद्यांशु सर ने जो इतने अच्छे नोट्स बनाए थे वो इसलिए बना पाए थे क्योंकि उनका वो सेकंड फॉरेस्ट का मेंस था और ये सेकंड टाइम पे वो एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट के प्रेपरेशन पर ही उन्होंने ध्यान दी थी. उन्होंने सिविल सर्विसेज के प्रेपरेशन पे ध्यान नहीं दी थी. Because he realized that this is a relatively more predictable exam. यहाँ पर आप मेहनत करोगे तो आपको results मिलने के chances relatively ज्यादा हैं. I'm not saying कि हमेशा इसमें भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी बहुत luck अभी आ जाता है, but relatively civil services में competition इतना ज्यादा है कि randomness और luck का scope और बढ़ जाता है. यहाँ पर थोड़ा सा linear relationship है आपके efforts से, ठीक है. So इसलिए people do that. So I had not made notes. हाँ मैंने लास्ट के वो 4-5-10 पेजेस मैक्स के जो वो बस डायग्राम्स वगैरह का जो कंपाइलेशन था वो बनाया था. वो आप लास्ट में यू कैन डू मे बी व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट फॉर द सेकंड थर्ड टाइम, तो यू कैन डू दैट योरसेल्फ. स्क्रिबल, मेक रफ डायग्राम्स कि लास्ट के दिन आप देख सकें उसको, बस वो चीज की उस चीज के लिए आप करने चाहिए. Forestry notes I mentioned Vidyanshu Jha sir's notes. All pages कोशिश करना है कि जितने pages आप जहां पर भी भर सके ना, any UPSC exam try to fill pages to whatever extent possible. हाँ अब ऐसा नहीं है कि एक में पेज भरने के चक्कर में दूसरा पूरा क्वेश्चन ही छूट जाए, वो नहीं करना है. It's always better to address at least थोड़ा सा भी of any other question. So if you are in that situation then don't fill page please. बट जहां तक भी पॉसिबल है ट्राई टू फिल पेजेस, ठीक है. जैसे भी डायग्राम बनाकर, बड़ा लिखकर, एक्स्ट्रा लिखकर, जो भी करके, बट फॉरेस्ट्री में ट्राई टू हिट द आंसर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वो बीटिंग ऑफ द बुश इज नॉट एनकरेज्ड इन टेक्निकल पेपर्स, ठीक है. 100% इन ऑप्शनल्स अटेम्प्ट तो करते ही, अब मार्क्स डिपेंड करता है. मतलब लास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चन थे आई थिंक, कुछ स्ट्रेन स्ट्रेस पर कुछ तो क्वेश्चंस आए थे जो कि हम लोग शायद 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो मुझे आता नहीं था वो सब. तो आई हैड रिटन इट बट पता नहीं 1-2 नंबर ज्यादा नहीं मिला होगा उस क्वेश्चन में. सो क्या I think targeting 2026 we can talk later. I think अभी हम लोग we are talking about ये वाला mains. So I think all the queries have been addressed. Factual questions to whatever extent you can prepare. आप मैंने बोला आपके पास 5 दिन का टाइम है, आप जो भी साइंस या पॉलिटी में आप जो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्राई टू प्रिपेयर. आई विल नेवर सजेस्ट दैट ब्लफिंग इज द ओनली ऑप्शन. मतलब it always has a potential to backfire, right? So that should never be your go-to option कि मैं bluff करके आई.
So try to prepare whatever is possible. It is possible आप 5 days में revise कर सकते हैं, especially अगर आपने इसके लिए किया है तो जो भी factual parts है, it can be done. So try to avoid bluffing as much as possible. Definition verbatim नहीं भी लिखना है तो definition में कुछ keywords होते हैं. अब जैसे मैनग्रोव्स का डेफिनेशन है, आई डोंट रिमेम्बर इट अभी ठीक से, बट कि वो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, वो सेलाइन वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं, कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, मिनरल्स रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं. सो नाउ दीज आर मे बी मिनरल्स रिसाइकलिंग यू डोंट राइट इन द डेफिनेशन, बट दे आर ट्रॉपिकल प्लांट्स, कोस्टल एरियाज, saline, halophytic, I am unable to remember these technical details right now, but when you read, you will realize there are some keywords in definition. तो आप verbatim मत लिखिए, but try to incorporate. Try क्या करना ही है incorporate, because layman definition science में it's not a good idea. So try to put all the keywords in your definitions. Geology के बारे में I will not be able to advise. So that's that. I think that is it about preparation. And any more queries, if you want to ask, you can. Otherwise, if there are people from zoology optional and they want to ask something, you can stay back. Apart from that, if there's not, then we can end the session. If there's anybody from zoology option, you can please ask whatever it is. So nobody? Zoology strategy. See, zoology, if anybody is interested in knowing the strategy, so it cannot be done in such a short time, starting from scratch. यहाँ पर आपको, आप ये, it's not a subject जो कि आप कम टाइम में कर सकते हैं. जियोलॉजी जैसे हो जाता है या फॉरेस्ट्री हो जाता है. zoology मैं इसलिए कर पाई थी क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज के साथ वो कॉमन थी, और उसमें नोट्स प्रिपेयर करने में इट्स हैज अ वास्ट सिलेबस. उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने में, डिस्पाइट माय बैकग्राउंड इन ज़ूलॉजी, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वही था, मुझे फिर भी उसमें दिक्कत हुई. सो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेल द स्ट्रैटेजी, बट इफ यू हैव नोट्स एंड ऑल, इफ यू हैव डन द बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन, तो बस जो आपने किया है उसको रिवाइज करना है. हर क्वेश्चन में आंसर, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है, बनाना ही है. इनफैक्ट जितना टेक्निकल रखें आंसर्स को, जितना आप अगेन साइंटिफिक नेम्स जहाँ पर ऐड करना है, जो भी स्मॉल फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं वो आप जहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल. वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट ही है, तो आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना आप रेप्लिकेट कर पाएंगे अपने नोट्स को अपने एक्चुअल एग्जाम में, आई थिंक you will fetch good marks. And of course, diagrams are very important. Use color pens, use different color pens. मैंने I think 5-6 colors भी use किए एक zoology के question में, because वो demand होता है, especially molecular biology वगैरह. There are 5-6 different molecules which are there. Replicase, helicase molecule है, DNA polymerase है. So you have to show them in different colors. एक strand है, दूसरा strand है. तो ये सब के लिए different colors लग जाते हैं. Those questions में थोड़ा सा time भी लग जाता है करने में. But you cannot show them all in one color. It will be a little challenging for the examiner. तो ये सब का थोड़ा practice करना है zoology. There's nothing more. Revise करना है और you have to just practice with that. So, okay, I think that is it. I think sir can say it's. Thank you so much, ma'am, for your valuable time you just gave. Your time, it was really very helpful for the students who are preparing for mains. Okay, thank you so much, guys. You joined the session till the time, and we may share the notes or the links, whatever ma'am has discussed in the session. So we will send you through email. Okay, thank you, guys. Bye bye. Thank you, sir. Okay.